students, I welcome you all to your Vedadu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and this is a total special session for all the students, those who are targeting super good marks in their accountancy examination and in their accountancy boards, in their accountancy class 12th or class 11th. So here are some tips, here are some important things which we are going to discuss so that you all score super amazing marks in your accounts examinations. So ऐसी कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाने पर मजबूर कर देती हैं, that is what we are going to talk in today's session. So yeah, I welcome you all to Vedantu Commerce channel, and this is the most important sessions for the students, those who are going and trying to get amazing or 90 plus marks in their accounting subjects. Yeah, so it has some habits, if you make these habits habitual, you are going to score, of course, 90 plus in your accounts examination. So what habits are that, what things, ma'am, we should follow so that we are getting super good marks in our accounts subject? We find it a bit difficult. Everybody says that the questions in accounts are difficult. Sometimes we can't solve the questions, so we close the book, right? If sometimes we see any questions कि भैया कोई क्वेश्चन हो गया ऐसा जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो हम बुक बंद कर देते हैं कि चलो अब तो पढ़ाई नहीं होगी, अब तो भैया सारी लाइफ खराब हो गई है ना. कभी कभार अकाउंट्स के क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन किए, 4-5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, तो उसके बाद तो सॉल्व नहीं हुए, तो हमने सोच लिया कि चलो भैया अब तो हमसे अकाउंट हो ही नहीं सकती, लेट्स गिव इट अप. Right? So it's not like that, beta. There are some things which you can make in your habits, you can include in your habits, और आप अकाउंट्स में तरक्की करोगे. दैट इज माई प्रॉमिस. So I'm just going to tell you the 5 simple habits which will make you all score amazingly. Number 1 is, of course, concept and practice, concept and practice, concept and practice. This is why it's written like so many times, because it is very and the most precious tip, beta, that concept पढ़ो पहले, उसके बाद क्वेश्चंस करो, राइट? ना तो कंसेप्ट अलग होगा, ना प्रैक्टिस अलग होगी. ना तो मैं ये कर सकती कि चलो सिर्फ कंसेप्ट कर लिया और क्वेश्चंस नहीं किए, ना तो मैं ये कर सकती कि सिर्फ क्वेश्चंस कर लिए, कंसेप्ट नहीं पढ़ा, राइट? सो जब भी आप अकाउंट्स की तैयारी करते हो या अकाउंट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठते हो ना, तो कंसेप्ट उसका पहले पढ़ो. पढ़ना कहाँ से है? नोट्स कॉपी जो आपको मेंटेन करनी ही करनी है, या नोट्स कॉपी से पहले सारे कंसेप्ट पढ़े जाएंगे, उसके बाद ही आपने क्वेश्चंस उठाने हैं. अदरवाइज ना तो किसी कंसेप्ट का कोई फायदा है, ना तो किसी प्रैक्टिस का कोई फायदा है. दोनों ही आपस में पैरेलल चलेंगे, तभी यू आर गोइंग टू गेट द टारगेटेड मार्क्स. अदरवाइज यू ऑल विल लूज इट. या तो अगर मैं सोचूं कि सीधा क्वेश्चन बुक खोली क्वेश्चन उठाए, दैट विल मेक यू ऑल लूज योर कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, राइट? और सिर्फ कंसेप्ट अगर मैंने पढ़े, क्वेश्चंस नहीं किए, तो उस टाइम मुझे लगेगा कि मुझे सब आता है, और एग्जाम में जाकर मुझे लगेगा हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं आता, राइट? सो इफ यू आर टेकिंग दीज टू थिंग्स हैंड इन हैंड, तब आपको जाकर समझ आएगा कि क्या है अकाउंट्स और कितनी आसान है अकाउंट्स, राइट? दीज आर वेरी सिंपल headings or words written here, but hear out my words, beta. Hear out my words, what I am telling you here. Nobody is going to tell you these things. कि concept और practice जब तक साथ साथ नहीं चलाओगे, तब तक accounts में marks अच्छे नहीं आ सकते. क्या करना है? मान लो कि मैंने आज fundamentals का एक topic करना है, past adjustments. So what will I do? I will revise all the concepts. I will see all the examples which were in my notes copy or which are in my notes copy. So I will go through them. Then I will start the questions. Yeah. Then I will do the questions. So questions निकलते जाएंगे. और जो क्वेश्चन नहीं निकला, मान लो कोई क्वेश्चन हमारा अटक गया, तो उस क्वेश्चन को हमने करना है मार्क, और मार्क करने के साथ साथ उसके कंसेप्ट को हमने फिर से समझ के अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना. अगर उसमें कोई नया कंसेप्ट निकल कर आ गया बाय चांस, या फिर एक नई ट्रिक निकल कर आ गई, तो वो ट्रिक भी मुझे अपनी नोट्स कॉपी में मेंशन करनी है, सो दैट व्हेन आई डू दिस नेक्स्ट टाइम और बिफोर माय एग्जामिनेशन और इन द मॉर्निंग बिफोर माय एग्जामिनेशन, आई गेट टू नो दैट ट्रिक एंड आई गेट टू रिवाइज दैट ट्रिक.
ये नोट्स कॉपी बेटा ऐसा मंत्रा है विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फाइनल टाइम, बिफोर योर प्री बोर्ड्स, बिफोर योर यूटीज, पीटीज, व्हाटएवर एग्जामिनेशंस यू हैव, और बोर्ड के दिन सुबह इतनी काम आएगी ना आप सोच नहीं सकते। तो कोई भी ट्रिक आपको किसी भी क्वेश्चन में मिले, उस ट्रिक को लाइन में यहाँ पर नोट बनाकर लिख लो कि ये ट्रिक है और ये याद रखनी है, राइट? और मार्क कर लो उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू कम बैक टू द चैप्टर यू डू दैट क्वेश्चन फर्स्ट। सो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, जिस जिस क्वेश्चन में आप अटके हो उस क्वेश्चन को मार्क करना, whenever you come back to that question you do that question again, और वो आपका क्वेश्चन अगर तब निकल रहा है बिना किसी एफर्ट के, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, तो समझ जाना यहाँ पर आपको वो चैप्टर समझ में आ चुका है। मानते हो कि नहीं ये बात? Tip number 2 or habit number 2 which I said you all already, that proper notes copy. एक proper notes copy is the mantra, because of course एक notes copy और उसी के अंदर questions practice अगर आप कर रहे हो तो that is 100% wrong। वही notes copy उसके अंदर ही notes भी बने हुए हैं, साथ में चल रहे हैं उसमें questions, ऐसे करोगे तो बात कभी भी नहीं बनेगी बेटा। अलग नोट्स कॉपी बनेगी, अलग प्रैक्टिस कॉपी बनेगी, और नोट्स कॉपी में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स और उसके एग्जाम्पल्स आएंगे, राइट? तो नोट्स कॉपी पूरे ईयर एक ही चलने वाली है। क्वेश्चंस की नोटबुक आपकी इतनी भर जानी चाहिए पूरे ईयर में कि आप खुद काउंट ना कर पाओ, आपके पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाए कि ये इतने सारे रजिस्टर खरीद रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, या वे इतना सारा रजिस्टर खरीद रहे हैं, ये कहाँ पर रखने की जगह ही नहीं बची है, राइट? ये एक सिचुएशन हो जाए आपकी। तो इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, और एक प्रॉपर नोट्स कॉपी जो ना तो ऐसी होगी अच्छा वहां पढ़ी है कभी वहां पढ़ी है, और ना ही कोई खराब होने वाली नोट्स कॉपी होगी कहाँ चली गई या मिल नहीं रही। एक प्रॉपर रजिस्टर नोट्स कॉपी का आपका होना ही होना चाहिए। whenever you get to know the tricky question, write a note for that. whenever you get to know anything new which you didn't knew earlier, उसको भी वहां पर लिखो उसी चैप्टर के अंदर। हर चैप्टर के मतलब 6-7 पेजेस आपके नोट्स के होने चाहिए, कंसेप्चुअल नोट्स के होने ही होने चाहिए। या टिप नंबर 3, questions over illustration. This is the thing which I have been saying from the very first day I started teaching accounts. Questions over illustrations. We have a habit of keeping illustrations over questions. Illustration मतलब examples, right? So examples बाद में, questions पहले, या फिर examples कम questions ज्यादा। सिर्फ illustrations अगर आप करते हो तो याद रखना एग्जाम में ब्लैंक होने के अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेशन जब करेंगे तो एक आंख तो आंसर पे रहेगी, एक आंख आंसर पे है तो क्वेश्चन कैसे करोगे? जो अब इलस्ट्रेशन करी, एक आंख आंसर पे रख दी, इलस्ट्रेशन में कॉपी पेस्ट करके वहां पे क्वेश्चन सॉल्व आ गया, आंसर निकल गया, एग्जाम में गई आंसर ही नहीं आ रहा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि तैयारी के टाइम क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। अगर आप तैयारी के टाइम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, सिर्फ इलस्ट्रेशन करके एग्जाम में जा रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो अकाउंट्स करता है या मैथ्स करता है। वो ये चीज जानता है कि जब जब हम एग्जाम्पल करते हैं हम एक ना एक डिजिट वहां से देखकर कॉपी करते ही हैं। तो वो एक ना एक डिजिट भी अगर एग्जाम में नहीं निकली तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। सो इलस्ट्रेशन करो, बट ये मत करो कि क्वेश्चंस करे ही नहीं। कुछ बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि हर चैप्टर की मैम हमने इलस्ट्रेशन पूरे कर लिए, तब भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे एग्जाम में, तभी भी मैं एग्जाम में जाती हूँ मुझे मार्क्स नहीं मेरे आते, एग्जाम में जाता हूँ मेरे मार्क्स नहीं आते। तो बेटा अगर आपने एक एक क्वेश्चन अपने आप दिमाग लगाकर किया ही नहीं, मैम अगर नहीं हो रहा तो उसको समझना है, बिल्कुल समझना है, बट जब तक आप उस क्वेश्चन को शुरू नहीं करोगे ना आपको ये नहीं पता चलेगा मुझे इसका कौन सा स्टेप नहीं आता। और जब तक आपको स्टेप ही नहीं पता होगा ना तब तक आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते कि मेरी कमी कहाँ पर है। तो कमी अपनी क्वेश्चंस करके ही पता चलती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे पूरी बुक की इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं और क्वेश्चन एक स्टार्ट किया, क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप ही हम देख लिख के करते थे, है ना? पहला स्टेप ही अगर देख देख के करते थे तो फिर आप देखते ही रह जाओ अब, है ना?
आप सिर्फ अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन को भी देखते ही रह जाओगे अगर सिर्फ इलस्ट्रेशन करके आप सोचते हो कि हम एग्जाम में बैठ सकते हैं। और ये साथ के साथ मैथ्स पे भी लागू होती है बात, कि मैथ्स में एग्जाम्पल किए क्वेश्चंस नहीं किए, अच्छा इंपॉर्टेंट होते हैं मैम एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात है करो, बट क्वेश्चंस ज्यादा, और क्वेश्चंस को रेपिटेटिवली चेक करो कि क्या मुझसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या मैंने जो क्वेश्चंस पहले किए थे अब मेरे से दोबारा होते हैं, क्योंकि पहली बार तो थोड़ा बहुत इधर उधर से समझ के किया होगा, टीचर से समझा होगा कोई क्वेश्चन, है ना, तब तो वो लगता है कि आ गया। जब आप उस पर वापस जा रहे हो तो वो आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, ये आपको आपकी सच्चाई बताएगा कि एग्जाम में कैसे मार्क्स आएंगे, राइट। हैबिट नंबर 4, रिविजन एवरी वीकेंड और मंथ एंड। एक अपना स्केड्यूल बना लो कि हर वीकेंड पे या मंथ एंड पे मुझे सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करना है, कुछ नया काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग जानते हो कि हम पुरानी चीजों को रोज भूलते हैं, है ना, पुरानी चीजों को रोज भूलते हैं। मैम उसको तो नहीं भूल पा रहे, तो क्वेश्चंस को तो आप भूलते जा रहे हो, क्योंकि कंसेप्ट तो आपने बस ऐसे ही पढ़े हैं, तो आप तो उसको रोज भूलते जा रहे हो। तो अगर आप एक दिन वीक में या फिर एक दिन मंथ में अपना रिवीजन का नहीं बनाते ना बेटा, तो आप अपने साथ धोखा करोगे कि ये कंसेप्ट मैंने इतने सारे किए बट मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैं चैप्टर 10 पे आ चुकी हूँ पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं अब तक। क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी रिवाइज ही नहीं किया। जो पिछले चैप्टर चलते गए उनको भूलते गए। तो क्या करना है, जब चैप्टर हमारा आ गया, मान लो 6th आ गया, तो एक दिन पूरा निकाल के दोबारा से क्वेश्चंस चेक किए, कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हर सैटरडे पे आ रही हैं, तो उनमें बैठ के देखा कि क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व होते हैं तो बी काम, बी सेटिस्फाइड एंड टेक अ चिल पिल, आपकी तैयारी चल रही है अच्छी। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब बाकी दोबारा से और 30 क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे वापस फ्लो में आने के लिए। तो वीक एंड पे मंथ एंड पे एक रिवीजन जरूर करो बेटा, अदरवाइज आगे चलते जाओगे, पीछा भूलते जाओगे, और क्या फायदा उसका, है ना। तो तभी आप देखते हो ना कि जब आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस पूरा जिनका हो जाता है दिसंबर तक, वो बोलते हैं कि हम तो भूल गए, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं। काफी बच्चे कॉल करके बोलते हैं एग्जाम से पहले या फिर आधा सिलेबस, पूरा सिलेबस होने के बाद, मैम ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं। ऐसा तो लगेगा ही बेटा जब आपने कभी रिवाइज ही नहीं किया, किसी चैप्टर को दोबारा उठाकर ही नहीं देखा। तो अगर आपने उठाकर नहीं देखा तो माइंड ने तो उसे भगा दिया कि कौन कौन फंडामेंटल्स, कौन चैप्टर एडमिशन। अभी तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, एडमिशन का कब किया था आप तो भूल गए, राइट। तो रिवीजन का अगर आप एक अपना रूटीन बनाओगे ना बेटा, फिर मुझे बताना कि इससे आपको फायदा हुआ या नहीं, है ना। रिवीजन का क्या रूटीन बनाओ कि जैसे आप ना, जैसे मान लो 6 चैप्टर पे आ गए हो, तो बाकी 5 चैप्टर्स के 5 क्वेश्चन संडे को बैठ के लगा लिए। अगर सॉल्व होते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते जा रहे तो उस चैप्टर को पकड़ लिया और उस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा सा 20 क्वेश्चंस करके रिवाइज किया, है ना। तो एक दिन या 2 दिन हमें रिवीजन के यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। अच्छा जी, लास्ट एंड फाइनल हैबिट, कंसिस्टेंसी। लिखने में बहुत आसान, करने में बहुत मुश्किल। लिखने में बहुत आसान, करने में बहुत मुश्किल, कंसिस्टेंसी यानी कि रोज पढ़ाई करना। बट बेटा इसमें जो बात मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ना, ये कोई नहीं बोलता, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि अगर किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए हो तो उसके रिग्रेट में अगला हफ्ता खराब नहीं करना होता। कि मान लो हमने कंसिस्टेंटली हम पढ़ाई कर रहे थे, 2 दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमें कहीं जाना पड़ गया, हमने तब पढ़ना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया, उस गिल्ट में हम एक हफ्ता और नहीं पढ़ेंगे। यही आपका सब कुछ खराब कर देगा। ये चीज आपके सारी तैयारी को खत्म करता है कि जब आप एक हफ्ता 2 हफ्ता उसको बंद कर देते हो कि 2 दिन के गिल्ट ने मेरा एक हफ्ता खराब कर दिया। नहीं, 2 दिन अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, फटाफट से बुक उठा लो, पढ़ लो, है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपने रोज पढ़ाई करनी है। अगर आपकी पढ़ाई में बाय चांस कोई ब्रेक लग गया है तो उससे दुखी होकर, 1 महीना दुखी होकर रोना नहीं है,
उससे दोबारा उठ के वापस आना है कि ठीक है मिस हो गया, मैंने जो पढ़ा था वो कहीं नहीं गया ना, जो मैंने आज तक इतनी पढ़ाई करी है वो कहीं तो नहीं गई, जो मैंने मेहनत आज तक की है वो कोई गायब तो नहीं हो गई। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि साथ साथ नेवर गिव अप भी रखो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं पढ़ पाए, तो वापस आना भी सीखो, उसमें गिल्ट में जाना, और गिल्ट में जाके एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता डिप्रेशन में जाके सोचते रहना कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमने तो वेस्ट कर दिया, हम तो पीछे रह गए, बैकलॉग बन गया। तो उस बैकलॉग को आप बैकलॉग इंटू टू, बैकलॉग इंटू थ्री, बैकलॉग इंटू फोर कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी आपको हर कोई बताता है, कंसिस्टेंसी के पीछे की सच्चाई कोई नहीं बताता। ये चीज बेटा सबके साथ होती है, दो तीन दिन कभी बीच में मिस हो जाते हैं, कुछ फंक्शन आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जो बच्चे उस दो तीन दिन को भूल कर वापस पढ़ने लग जाते हैं, तो उनकी बात बन जाती है। जो उसको सोच सोच कर और दिन वेस्ट करते जाते हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, राइट। सो ये हैबिट्स अगर आप अपने अंदर ले आते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाने से, राइट। सो इतना ही रखेंगे आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, दैट मच ओनली फॉर टुडेज क्लास, राइट। आई होप यू ऑल विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज हैबिट्स। वंस एग्जीक्यूट दिस, उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एक भी हैबिट को आज से चलाना शुरू कर दो, उसके बाद आके बताना कि क्या कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, right? That's all for the day. This much only we'll be covering for today's class. If you all got any benefit, और एक भी अगर आपको हैबिट ऐसी लगी हो कि हाँ अगर मैंने ये अपने प्लान में ले आई या ले आया तो बहुत बेनिफिट करेगी, तो इस वीडियो को लाइक करना कि मैम आपने जो बात कही ना वो सच में बहुत बहुत बेनिफिशियल थी, right? So thank you so much everybody for joining in, for listening. This much only we will be covering for today. Take care of yourselves. Bye bye and see you all in the next